Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss about an American playwright, Tennessee Williams, who was born on 26 March 1911 and was died on 25th February 1983. So, we are going to discuss his one of the play, A Streetcar Named Desire, which was published on 3rd December 1947. Tennessee Williams, whose real name was Thomas Lanier Williams III, known by his pen name Tennessee Williams, was an American playwright. Williams became interested in playwright while at the University of Missouri and Washington University, and worked at it even during the Depression while employed in a St. Louis shoe factory. Characters in the novel Streetcar Named Desire are Blanche Dubois and Stella were sisters. Stanley Kowalski, Stella's husband. Harold Mitch, Stanley's friend. Eunice, Stella's friend, also neighbor and landlady. Alan Gray, a young man with poetic aspirations, a young collector. Ship, a former suitor. Steve, Stanley poker buddy and Eunice's husband. Pablo, again Stanley's poker buddy. A Negro woman, a doctor, a Mexican woman, a nurse, Shaw, a supply man. So, the play opens with a young couple, Stella and Stanley Kowalski, lived at French Quarter of New Orleans. Upstairs lives another couple, Eunice and Steve. Blanche was a school teacher in Laurel, Mississippi. She went to her sister's apartment and applied for leave in her school because she was very upset. तो बेसिकली अब स्टोरी शुरू हो रही है. स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? एक कपल से जो कि स्टेला और स्टैनली कोवल्स्की हैं, जो कि कहाँ रहते हैं? फ्रेंच हेड क्वार्टर में न्यू ऑरलेंस में. और उन्हीं के ऊपर जो एक घर है वहां पे एक और कपल रहते हैं, यूनिस एंड स्टीव. सो अब क्या होता है, ब्लांची जो स्टेला की सिस्टर होती है वो एक स्कूल टीचर होती है मिसिसिपी में. ठीक है, अब वो क्या होता है, बहुत टाइम से वो परेशान रह रही थी, अपसेट रह रही थी कुछ चीज़ों के वजह से. तो उसने क्या किया, अपने स्कूल में लीव एप्लीकेशन दे दी और वो अपनी सिस्टर के अपार्टमेंट कुछ दिनों के लिए रहने के लिए चली गई. Now Blanche arrives with a suitcase with her. वो अपने साथ एक सूटकेस लेके आई थी, ड्रेस्ड इन अ फाइन व्हाइट सूट, और एक व्हाइट कलर के सूट में आई थी. Blanche moves tentatively, looking and apparently feeling out of the place in Stella's neighborhood. Eunice assures Blanche that the building is Stella's residence. तो बेसिकली हुआ क्या था, जब ब्लांची अपनी सिस्टर के यहाँ आई थी तो स्टेला और उसके जो हस्बैंड है स्टैनली, वो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे. तो ब्लांची इधर उधर मूव कर रही है, समझ नहीं पा रही है कि क्या मैं करेक्ट जगह पे आई हूँ या नहीं. देन यूनिस ने उसे अश्योर किया कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही बिल्डिंग पे हो, बिल्कुल सही जगह पे हो. नाउ स्टेला अराइव्स, और थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, स्टेला आती है. Blanche informed Stella that an old ancestral home, Belly Reeve, has been lost. तो ब्लांची स्टेला को क्या इन्फॉर्म करती है कि उन लोग का जो ओल्ड एंसेस्ट्रल होम था जिसका नाम बेली रीव था, वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया है. किसी वजह से उन्होंने वो खो दिया है. The play continues with Blanche was drinking something. Now Stanley comes and Blanche tell him that she was married once but her husband died. So अब क्या हो रहा है, स्टेला के बाद स्टैनली की एंट्री होती है और ब्लांची उसे बताती है कि काफी समय पहले उसने शादी करी थी बट अब उसके हस्बैंड मर चुके हैं. Now the two sisters planned
to have dinner at restaurant and go to a movie and Stanley plays poker with his friends. तो क्या होता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अब दोनों सिस्टर्स क्योंकि काफ़ी समय बाद मिली थी तो दोनों ने प्लान किया कि वो लोग रेस्टोरेंट जाएंगे डिनर के लिए एंड मूवी भी जाएंगी। एंड स्टैनली जो है वो क्या करेगा, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पोकर खेलने वाला था। तो ये सब उन तीनों ने मिलके प्लान किया। Now Blanche and Stella complete their movie. Now they come to Stanley where they are continuing the poker. स्टेला और ब्लांची जब मूवी कंप्लीट करके वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो स्टैनली है वो अभी भी अपने पोकर्स में ही खोया हुआ है, कंटिन्यू वो गेम खेलता ही जा रहा है। एंड वेयर ब्लांची मीट मिच who seems to be more sensitive. While Mitch is in the second room talking to Blanche, Stanley becomes angry over a series of incidents, especially when Blanche turns on the radio. So क्या होता है, जब ब्लांची और मिच मिलते हैं तो वो दोनों दूसरे रूम में जाके आपस में बात कर रहे होते हैं और उसी दौरान ब्लांची ने रेडियो ऑन कर दिया था जिसके साउंड से स्टैनली बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए और रेडियो को उठा के खिड़की के बाहर फेंक दिया। ठीक है, ही वॉज सो एंग्री सो ही हैज़ टू बी हेल्ड बाय अदर मैन टू बी केप्ट फ्रॉम डूइंग मोर डैमेज। तो बहुत ज़्यादा इरिटेट और गुस्सा हो गया था, सो उसे बहुत लोगों को पकड़ने की ज़रूरत पड़ गई थी ताकि वो कुछ और नुकसान ना कर दे। ब्लांची टेक स्टेला एंड रन अपस्टेयर। ब्लांची डर गई थी ये सारी चीज़ें देखे और अपनी सिस्टर स्टेला को लेके अपस्टेयर ऊपर चली गई थी और वो स्टेला को बार बार कहती थी कि जो तुम्हारा हस्बैंड है वो बिल्कुल तुम्हारे लेवल का नहीं है, मैच नहीं करता है, तुम उसे छोड़ दो, दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। Now when Stanley calm, she called Stella to come down and she was there with him. So अब क्या होता है, जब स्टैनली काम डाउन हो जाता है वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, बोलता है नीचे आओ और वो नीचे जाती है। नेक्स्ट डे ब्लांची wants to tell Stella that Stanley is an animal. अगेन यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टैनली के बारे में ब्लांची का जो माइंडसेट है वो बता रही है कि जो स्टैनली है वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो बिल्कुल ही ऐसा जानवर है, तुमने देखा ना उसने क्या करा था। बट स्टेला ट्राई टू कन्विंस ब्लांची दैट स्टैनली इज अ गुड पर्सन एंड लव्स हर अ लॉट। लेकिन स्टेला ब्लांची की साइड स्टेला स्टैनली की साइड लेते हुए कहती है कि नहीं, वो एक अच्छा इंसान है, उसने जो भी किया था वो बस गुस्से में किया था, ऑल्दो वो मुझे बहुत प्यार करता है। Now Stanley came at a sudden and hears all the conversation. तो स्टेला और उसके सिस्टर में जो भी बातें हो रही थी स्टैनली को लेके, स्टैनली ने वो सब कुछ सुन लिया था बट उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। Now Blanche is preparing for a date with Mitch. और अब क्या होता है, ब्लांची मिच के साथ जाने के लिए एक डेट प्रिपेयर कर रही थी, घूमने फिरने के लिए। स्टेला एंड स्टैनली गो टू बाउलिंग। स्टेला और स्टैनली कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं। अ पेपर बॉय अराइव देयर। ब्लांची डिटेन्स इनफ टू किस हिम बिकॉज ही रिमाइंड हर ऑफ हर यंग हस्बैंड। सो जब स्टैनली और स्टेला बाहर जाते हैं उसी दौरान एक पेपर बॉय आता है और ब्लांची क्या करती है, उस पेपर बॉय को किस करने की कोशिश करती है। क्योंकि वो उसे उसके जो यंग हस्बैंड थे उसकी याद दिला रहा था। नाउ अगेन द फॉर्मेशन ऑफ द प्ले इज चेंज्ड here. When Blanche and Mitch returned from their date, she told him how Stanley hates her. जब ब्लांची और मिच डिनर डेट से वापस आते हैं तो उसने उसको बताया कि स्टैनली उसे कितना हेट करता है। She tells him about her marriage and her past life. वो मिच से अपने पास्ट लाइफ, अपने जो उसकी जो शादी हुई थी उसके बारे में शेयर करती है चीज़ें। मिच टोल्ड ब्लांची दैट दे नीड ईच अदर। मिच क्या कहता है ब्लांची को कि शायद उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। नेक्स्ट द प्ले अगेन मूव्स
In middle September, Stella is preparing a birthday cake for Blanche. अब क्या होता है, मिड सितंबर की बात है, ब्लांची का बर्थडे आने वाला है और उसी दौरान स्टेला उसके लिए केक प्रिपेयर करती है. Stanley comes and told Stella that it means Blanche, lived such a wild life in L'Oreal that she was asked to leave the town. उसने उसको बताया कि ब्लांची बहुत ही एक वाइल्ड लाइफ जी रही थी लॉरियल मिसिसिपी में, तो उसे वहां से टाउन छोड़ने के लिए बोला. Stanley then tells her that Mitch won't be coming over and that Blanche will leave Tuesday on a Greyhound bus. Later that evening, Blanche cannot understand why Mitch does not come. After a scene between Stanley and Stella, Stanley gives Blanche her birthday present, a ticket back to L'Oreal, Mississippi. और उसी शाम को क्या होता है, जब स्टैनली कहता है कि मिच नहीं आएगा, तो ब्लांची समझ नहीं पाती है कि आखिर क्या हो गया, मिच क्यों नहीं आएगा. और उसी दौरान स्टैनली ने ब्लांची को उसका बर्थडे प्रेजेंट दिया. क्या? एक टिकट बैक टू लॉरियल मिसिसिपी का, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ब्लांची उन लोगों के साथ रहे. सो एज स्टैनली इज अबाउट टू लीव, जैसे ही स्टैनली जाने वाला था कहीं बाहर, स्टेला हर फर्स्ट लेबर पेन्स एंड हैज टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल. और स्टेला को उसी वक्त उसका फर्स्ट लेबर पेन स्टार्ट हो गया और उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा. मिच अराइव्स लेटर दैट इवनिंग, और उसी शाम में मिच भी आता है. ब्लांची हैज बीन ड्रिंकिंग रादर हेविली, क्योंकि ब्लांची बहुत अपसेट थी बहुत सारी चीज़ों से, तो उसने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया था. Mitch then tries to get her to sleep with him and Blanche demands marriage. Mitch tells her that she is not good enough and Blanche screams fire so as to make Mitch leave. So क्या होता है, मिच और ब्लांची के बीच में फिर बातें होती है और मिच क्या डिमांड करता है, टू बी स्लेप्ट विथ हिम, बट ब्लांची डिमांड करती है मैरिज के लिए. और उसी वक्त मिच बोलता है कि तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर मैरिज. और ब्लांची क्या करती है, चीख देती है, जोरों से स्क्रीम करती है, चिल्ला देती है और मिच को वहां से जाने के लिए बोलती है. Later that night, Stanley returns from the hospital to find Blanche dressed in an old evening dress. He tells that the baby won't come before morning. तो जब स्टैनली वापस आता है घर, तो वो देखता है कि ब्लांची एक इवनिंग ड्रेस में है और वो कहता है कि बेबी जो है वो सुबह के पहले नहीं आने वाला है. एंड शी इज फ्राइटेंड टू स्टे विद हिम, स्पेशली व्हेन ही बिगिंस confronting her with all that lies she has told. अब क्या होता है, ब्लांची को डर लगने लगता है, वो स्टैनली के साथ अकेले नहीं रहना चाहती है उस वक्त में. He decides that she won't be too bad to interfere with. After a scuffle, he rapes her. ब्लांची क्या बहुत डरती है कि वो स्टैनली के साथ अकेले कोई भी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती थी किसी भी वजह से. बट अब क्या होता है, क्योंकि उसकी सिस्टर तो हॉस्पिटल में है, तो उसे अकेले रहना पड़ेगा. और उसी दौरान क्या होता है, स्टैनली के माइंड में कुछ उल्टी सीधे चीज़ें चलती है एंड ही रेप्स हर. 3 weeks later, Stella is packing Blanche's clothes and waiting for a doctor and an attendant to come and take her to the state mental institution. जब 3 हफ्ते बीत जाते हैं, स्टेला क्या कर रही होती है, ब्लांची के कपड़े पैक कर रही होती है और डॉक्टर के लिए वेट कर रही होती है. क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि ब्लांची थोड़ी अनस्टेबल है, तो उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन जाने की ज़रूरत है. स्टेला रिफ्यूज टू बिलीव ब्लांची स्टोरी दैट स्टैनली रेप्ड हर, क्योंकि जब स्टैनली ने ब्लांची को रेप्ड कर दिया तो फिर वो अपनी सिस्टर को बता रही थी कि तुम्हारे एब्सेंस में तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसा ऐसा करा है, तो वो उस चीज़ को बिलीव नहीं कर रही थी और समझ रही थी कि शायद मेरी सिस्टर अनस्टेबल है और उसे मेंटल असाइलम की ज़रूरत है. ब्लांची थिंक्स दैट एन ओल्ड बॉय फ्रेंड इज कमिंग टू टेक हिम हर ऑन अ क्रूज. और
ब्लैंची को पता नहीं था कि उसे मेंटल असाइलम भेजा जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसका एक फ्रेंड आ रहा है और वो उसे क्रूज पे लेके जाएगा। When the attendant arrives, she does not recognize him and tries to run away. Stanley and an assistant trap Blanche. The doctor approaches and Blanche is quite willing to go with him, having always dependent on the kindness of strangers. फिर क्या होता है, जब अटेंडेंट आता है तो ब्लैंची कुछ समझ नहीं पाती है, वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है और भागने की कोशिश करती है, बट डॉक्टर्स और स्टैनली उसे ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। देन जो डॉक्टर है वो उसे अप्रोच करता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छी जगह ले जा रहा हूँ। जैसे कैसे हम छोटे बच्चों को फुसला देते हैं कि हम तुम्हें चॉकलेट देंगे तो ये कर लो वो कर लो, उसी तरह क्योंकि ब्लैंची की आदत थी हमेशा स्ट्रेंजर्स के अच्छी बातों पे, काइंडनेस पे उनके बिलीव कर लेना, और उसी वजह से उसने डॉक्टर पे भी बिलीव कर लिया कि शायद वो उसे अच्छी जगह लेके जा रहा है और वो उसके साथ जाने को रेडी हो गई। Thus, the play is structured on the principle of presenting the two worlds, establishing what each world believes in, and then placing these worlds in a series of direct confrontations until one is destroyed. So that's it for this video lecture. Thank you everyone. Keep watching.